मेरा आज का टॉपिक है ethers and epoxides. So let us start from ethers. What are ethers? Ethers are alkoxy substituted alkenes and alkynes. As with alcohols, only saturated carbon atoms may be substituted into alkenes and alkynes. Ethers, we can say ROR dash. Generally हम देखते हैं ROR dash. R is for alkyl group and again R dash is for alkyl group. We are giving ROR dash because it can be symmetrical ether or it can be unsymmetrical ether. If both the groups are same, like from both the side of oxygen की दोनों तरफ methyl group होगा, then it is symmetrical ether. और अगर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप होते हैं, then we can say it is unsymmetrical ether. Then come to the nomenclature. Now how we give name to the ethers. Ethers are there are two methods of nomenclature, common methods and then IUPAC methods. So in common method, commonly named by listing the name of the groups attached to the oxygen atom. ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड है उनके आधार पर हम इसका नामकरण करेंगे एंड एडिंग द वर्ड ईथर और उसके बाद में ईथर, लाइक हियर प्रेजेंट मिथाइल एंड इथाइल. सो फर्स्ट वी टेक लॉन्ग चेन इथाइल मिथाइल ईथर, मींस इथाइल मिथाइल ईथर. Again, if we have taken one group is phenyl and other side is methyl, then we can say methyl phenyl ether. In IUPAC system, IUPAC nomenclature names ethers as a alkoxyalkane. Alkoxyalkenes or alkoxyalkynes depends upon the presence of, if here alkane is present, alkene is present, or alkyne is present, depends on the presence of the group. The group in the chain that has the greatest number of carbon atom is like in this case one side is methyl group is present and other side it is ethyl group. So we have taken methoxyethane, like methoxy group as हम parent compound लेंगे जो long chain है, long chain को parent compound मानेंगे and methoxy group is the functional group now. So it is methoxyethane. In case of benzene, जब बेंजीन के साथ अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वी ऑलवेज टेकिंग बेंजीन एज पेरेंट कंपाउंड. तो यहाँ पर हम बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन बिकॉज बेंजीन इज पेरेंट कंपाउंड एंड दिस ग्रुप इज OCH3, so this is methoxy benzene. Similarly, it is methoxyethene. Cyclic ethers. If ether is present in cycle, like oxygen containing ring system are normally called by their name, tetrahydrofuran. This is 1,4-dioxane. Now how we prepare ethers. Ethers बनाने के methods क्या क्या है? First method, dehydration of alcohols. Alcohols को dehydrate करेंगे. Dehydrating agent H2SO4, sulfuric acid. As we know, sulfuric acid is good dehydrating agent. So excess of alcohol is heated with concentrate sulfuric acid. Concentrate sulfuric acid के साथ 413 केल्विन 413 केल्विन पर इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं तो डाइथाइल ईथर मिलता है. इट डिपेंड्स, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें ईथर मिलेगा. If we have taken methanol, then got dimethyl ether. If we have taken propyl group here, then we got dipropyl ether. So it depends on the alkyl group which we have taken in the as initial reactant. So ये डाइथाइल ईथर मिलता है विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल वाटर मॉलिक्यूल. दो मॉलिक्यूल हमने इथेनॉल के लिए तो दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और वन मॉलिक्यूल वाटर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर विद डाइथाइल ईथर. Williamson synthesis. This is very good method to prepare ether, widely used method for the preparation of both symmetrical and unsymmetrical ethers. इस केस में हम दोनों तरह के ethers बना सकते हैं, symmetrical भी और unsymmetrical भी, by treating sodium alkoxide with alkyl halide, sodium salt of alcohol, or we can say sodium, like here we have taken ethyl group, so it is sodium ethanolate. इस सोडियम इथेनोलेट को हम एल्काइल हैलाइड के साथ, एनी एल्काइल हैलाइड वी हैव टेकन,
So here we have taken C2H5I ethyl iodide. Ethyl iodide के साथ हमने इसको treat किया and what we get, ethoxyethane. We can say ethoxyethane, also we can say diethyl ether with elimination of sodium iodide. Similarly, in case of alkyl, अगर हम यहाँ benzene ring लेते हैं, aromatic ring लेते हैं, then it is sodium phenolate, and in case of this sodium phenolate, we have taken again alkyl halide C2H5I, ethyl iodide, and the final product is ethyl phenyl ether. Ethyl phenyl ether with elimination of sodium. Now, talking about physical properties of ethers. Physical properties of ethers, physical state कैसा होता है ethers का? The first two members, lower members, dimethyl ether and methyl ethyl ether. These are gases at room temperature. Room temperature पर दोनों lowest जो ethers होते हैं वो gases होते हैं, while diethyl ether and higher homologues यानी greater than these both dimethyl ether and methyl ethyl ether के बाद जितने भी हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले ईथर्स हैं, हायर होमोलॉग्स हैं, वो सब लिक्विड्स होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक ईथरल स्मेल. ईथर्स के अपने स्मेल होते हैं, उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है. बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की, ईथर्स आर लो बॉइलिंग सब्सटेंसेस. बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली ईथर्स का कम होता है बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ऑल. जैसे अल्कोहल्स में हमने कल फिनॉल्स में पढ़ा था, फिनॉल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. सो because there are no appreciable molecular interactions, कोई molecular interaction नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा, तो इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हमेशा लोअर साइड में होते हैं. अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल्स के साथ तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ईथर्स के कम हो. नाउ कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स. अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ईथर्स आर बिहेविंग लाइक वीक बेसिस की तरह से बिहेव करते हैं ईथर्स. अगर हम अब कैसे जानेंगे कि ये वीक बेस की तरह से बिहेव कर रहे हैं? अगर हम इन ईथर्स का रिएक्शन मिनरल एसिड्स के साथ कराते हैं, मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट होकर दे गिव सॉल्ट. सॉल्ट फॉर्मेशन होता है. लाइक इन दिस केस डाइमेथाइल ईथर इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट गिव्स डाइमेथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. मीन्स अगर हम ईथर को एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वी गॉट सॉल्ट, दैट मीन्स इट इज बिहेविंग एज बेस. नाउ फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स बनाते हैं. अगर हम ईथर्स को खुला रख दें, ऊपर रख दें, एयर में रख दें, तो व्हाट वी गेट, यहाँ पर कुछ पेरोक्साइड्स बन जाते हैं. लाइक डाइथाइल ईथर को अगर हम एयर में रख देंगे तो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये पेरोक्साइड बनाता है. यहाँ पोजिशन पर ये पेरोक्साइड. थर्ड प्रॉपर्टी इज क्लीवेज बाय एसिड. अगर एसिड से ट्रीट करते हैं हम ईथर्स को तो बेसिकली अपना ये ईथर लिंकेज ब्रेक कर देते हैं. ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एसिड्स, अगर कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ हीट करो तो ईथर लिंकेज ब्रेक्स टू फॉर्म एन अल्कोहल. यहाँ से या यहाँ से ये ब्रेक करेगा और एक अल्कोहल फॉर्मेशन होता है. एंड दूसरा, जिस एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी हेलोजन हमने लिया है उसका, लाइक आयोडीन, यहाँ हमने HI लिया था, डाइथाइल ईथर के साथ हाइड्रो आयोडिक एसिड का हमने रिएक्शन कराया तो वन इथेनॉल इज फॉर्म्ड जो अल्कोहल बनता है और दूसरा आइडोइथेन बनता है. और यू कैन से कि जो भी हमने हेलोजन लिया है उसके साथ ये कंपाउंड बनाएगा. हेलोजनेशन. ऑन ट्रीटमेंट विद हेलोजेंस, अगर हेलोजेंस के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजेंस के साथ ट्रीट करते हैं. हेलोजिनेटेड टू फॉर्म पॉलीहेलोजिनेटेड, मीन्स पॉलीहेलोजिनेटेड होते हैं, सारे हाइड्रोजन इनके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय और ब्रोमीन एटम. जो भी हेलोजन हमने यूज किया है, जिस हेलोजन के साथ हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, it gets substituted by this halogen. So it gives, like in this case, diethyl ether is treated with chlorine, it gives परक्लोरोडाइथाइल ether. रिएक्शन विद BCl5 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं हमें एथाइल क्लोराइड और एल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं. जो हेलोजन हमने यहाँ यूज किया है उसी के अकॉर्डिंगली हमें हैलाइड्स मिलेंगे. तो लाइक इन दिस केस डाइथाइल ईथर इज ट्रीटेड विद BCl5
and it gives ethyl chloride with elimination of PuCl3. Electrophilic substitution. Now electrophilic substitution takes place only in aromatic rings. So अगर ईथर में फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, बेंजीन है, तब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा. नाइट्रेशन हेलोजिनेशन होगा. अब लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रेशन का. फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड, ये हम कह सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर. मिथाइल फिनाइल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड. इट गिव्स ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट कंपाउंड. पेरेंट कंपाउंड का ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आएगा या पैरा पोजीशन पर, बिकॉज इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. पेरेंट ग्रुप इज हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. सो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन होता है एंड वी गेट ortho and para-nitroanisole is treated with annual with nitric acid, and with the removal of nitric acid से react करना है तो water removal होगा. Ziesel's method. One method is Ziesel's method, very good method to know the presence of ethers. अगर हम ethers की presence जानना चाहते हैं, this method is used for the estimation of methoxyl and ethoxyl group in a compound. अगर कंपाउंड में हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई methoxyl group या ethoxyl group present है, तो we generally use this method, Ziesel's method. The compound under examination is heated with concentrated HCl or HI. The ether is decomposed. किसी भी mineral acid के साथ हम कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड के साथ इसको हीट करेंगे एनिसॉल को, और O2H5 भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है इफ वी वांट टू नो द प्रेजेंस ऑफ इथॉक्सिल ग्रुप. तो इसको हीट करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस के बाद फिनॉल ग्रुप प्राप्त होता है और साथ में हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है. दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट ईथर्स. नाउ if we are talking about epoxides, what are epoxides? Epoxides are cyclic ethers. अगर हम देखें, अगर यहाँ ये बॉन्ड नहीं होता, यहाँ CH3 होता, तो इट इज डाइमेथॉक्सीथेन, सॉरी डाइमेथाइल ईथर. अब अगर ये साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, देन इट इज नॉन एज epoxide. Epoxides are cyclic ethers with 3-membered rings. They are called oxyrenes. General common name इसका और IUPAC name इसका oxyrene है. Some examples are like this is oxyrene or ethylene oxide, and substituted oxyrene is 2-methyl. Numbering हम यहाँ से जहाँ से भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्योंकि functional group present है तो numbering इधर. This is 2-methyl oxyrene, or we can say propylene oxide. Method of preparation of epoxide. अब सिंथेसिस कैसे करते हैं, हम एपॉक्साइड्स कैसे बनाते हैं, तो बाय डिस्टिलिंग इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का हम एल्कली के साथ ट्रीट किया, हमने इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो साइक्लाइजेशन हो जाता है, एपॉक्सीडेशन होता है. साइक्लाइजेशन से के साथ साथ यहाँ से वाटर रिमूवल होता है, HOH वाटर रिमूवल हुआ यहाँ पर, ये H इसका, OH यहाँ से, and potassium react with this halogen and it gives KCl. We got KCl and H2O with formation of ethylene oxide. By passing ethylene and oxygen over a silver catalyst under pressure at 250 degrees Celsius. अगर ethylene को और oxygen को silver catalyst पर से हम पास करते हैं under pressure at 250 degrees Celsius, then also cyclization takes place and it forms ethylene oxide. Ethylene oxide बनता है. By epoxidation of alkenes. Alkenes का epoxidation करके भी हम epoxides बना सकते हैं. तो for this purpose, reactions between an alkene and an organic peroxy acid. किसी भी organic peroxy acid के साथ हम reaction कराते हैं alkenes का. alkene R CH डबल बॉन्ड CHR, तो LR कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं और साथ में पर एसिड लिया हमने किसी भी अल्काइल ग्रुप का. इट कुड बी सेम लाइक दिस, जो हमने यहाँ अल्काइल ग्रुप लिया है वही सेम यहाँ भी ले सकते हैं और अलग भी ले सकते हैं. डिपेंड्स इफ वी वांट टू मेक सिमेट्रिकल
epoxide, then we should take same alkyl group, और अगर हम unsymmetrical बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग R group ले सकते हैं. Reactions between an alkene and an organic peroxy acid, the reaction is known as epoxidation. और ये जो reaction होता है, ये जो cyclization होता है, this is known as the removal of carboxyl. Properties of epoxides. Now अगर हम बात करें properties की epoxides की, epoxides में हम ethylene oxide की बात अगर करें, on heating undergoes rearrangement and forms acetaldehyde. अगर हम इथिलीन ऑक्साइड को हीट करते हैं तो इसका बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड्स ब्रेक होकर इट गिव्स एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड. रिंग ओपनिंग इन एसिडिक मीडियम. अगेन अगर हम एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं वाटर के साथ, पर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पर, और ये CH2OH एंड वन मॉलिक्यूल हेयर शुड बी 1H2O. H यहाँ इस जगह पर हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोजन इधर और OH इधर लगेगा, तो ये इट गिव्स इथिलीन ग्लाइकॉल एट एनी पोजीशन आइदर हेयर और हेयर. हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड इट गिव्स इथिलीन ग्लाइकॉल एज अ प्रोडक्ट. रिंग ओपनिंग इन बेसिक मीडियम. अगेन अगर हम बेसिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल के साथ यहाँ रिएक्शन हो रहा है, तब भी रिंग ओपनिंग हो जाता है. लाइक इथिलीन ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद इथेनॉल और मिथेनॉल, डिपेंड्स कि कौन सा हमने अल्कोहल लिया है. ये ग्लाइकॉल मोनो इथाइल ईथर बनता है, CH2OH CH2O C2H5. यानी इसका एक हाइड्रोजन यहाँ रिंग ओपनिंग जब होगी, हाइड्रोजन चला जाएगा और CH2 के साथ OC2H5 आ जाएगा. तो ये OC2H5 यहाँ पर, एंड इट गिव्स ग्लाइकोल मोनोइथाइल ईथर. फर्दर रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हम रिड्यूस करते हैं इथिलीन ऑक्साइड को. यहाँ पर हम नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं, और जब इसको रिड्यूस करेंगे और इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, इट गिव्स इथेनॉल. अगेन रिंग ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एंड इट गिव्स CH3 CH2OH. It is all about ethers